हमारे पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। हर एक प्रश्नों की दुविधाओं का हम आंसर देंगे। आज कृष्ण भगवान नो जन्मदिवस है અને જન્માષ્ટમી છે, તો આપણે દરેક દર્શક મિત્રોને જણાવી દઈએ કે કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મ આપણે છે આજે, અને એના માટે આપણે એનું એક અમૂલ્ય વસ્તુ આપણે એના વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીશું। અને કૃષ્ણ ભગવાનનો જે શંખ છે, એ શંખ જો તમે દિવસમાં એકવાર સવારમાં 3 વાર જો વગાડવામાં આવે, આખા દિવસમાં એ શંખને જો 3 વાર વગાડવામાં આવે તો આપણા ઘરનો જે વાસ્તુ દોષ છે, વાસ્તુ દોષ અને નેગેટિવ રહેશે ઘરની અંદર, અને સારા બધા એટલા બધા સારા કામો થશે કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રણામ કરશું, અને કૃષ્ણ ભગવાન આપણને કંઈક સારું ખરાબ થતું અટકાવે અને આપણને જીવનના કંઈક રસ્તાઓ સરસ બતાવશે। તો આજે જન્માષ્ટમી છે, તો દરેક દર્શક મિત્રોને મારી તરફથી જન્માષ્ટમી મુબારક બધાને। આજે આપણે ચાલીએ કે ઘણા બધા પ્રશ્નો મારી પાસે આવ્યા છે, ઘણા બધા ઈમેલ્સ આવ્યા છે, અને આપણી ફોન લાઈન પણ હમણાં ચાલુ થઈ જશે, તો દરેક દર્શક મિત્રોને જે કાંઈ પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે। આપણે આજે જોઈએ કે મારી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા છે। એ પ્રશ્નો એટલા બધા છે કે આપણે એક પછી એક આપણે લેતા જશું અને જે કાંઈ આપણા પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન। તો હજી હું જણાવી દઉં કે MATVના આ કાર્યક્રમ આપણો દર સોમવારે અને બુધવારે આપણે કન્ટિન્યુ રહેશે। તો આજના કાર્યક્રમની અંદર આપણે જોઈએ કે એક વીણાબેને મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે માન્ચેસ્ટરથી, કે લક્ષ્મી વિધિ કરવા માટે શું કરવું અને તેમાં શું વાપરવામાં આવે છે। તો લક્ષ્મી વિધિમાં એવું છે કે તમે લક્ષ્મી વિધિ આપણે ધનતેરસ ઉપર કરીએ છીએ, કોઈ સારો ઘરમાં પ્રસંગ હોય ત્યારે પણ આપણે લક્ષ્મી વિધિ કરાવી શકીએ છીએ, શંકર ભગવાનનો દિવસ હોય, શિવરાત્રી હોય, જન્માષ્ટમી હોય, તો નવરાત્રી હોય, તો એની અંદર પણ આપણે લક્ષ્મી વિધિ કરાવી શકીએ છીએ। તો વીણાબેનની સાથે આપણે આના વિશે હું આગળ જણાવું એ પહેલા આપણે એક કોલ લઈ લઈએ, કેમ કે ફોન લાઈન ચાલુ થઈ ગઈ છે। હેલો હેલો, આપણે વાત કરીએ કે ફોન કપાઈ ગયો, તો આપણે આગળ વાત કરીએ કે વીણાબેને આપણે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ પ્રશ્ન વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ કે લક્ષ્મી વિધિ કરવા માટે શું વપરાશે। અને લક્ષ્મી વિધિમાં હું તમને જણાવું કે લક્ષ્મી વિધિ 2-3 પ્રકારની આવે છે। તમારા ઘરમાં કોઈ સોનાની વસ્તુ કે કોઈ ચાંદીની વસ્તુ હોય, અથવા તો પૈસા હોય, તો પૈસાને મૂકીને પણ આપણે લક્ષ્મી વિધિ કરાવી શકીએ છીએ। એ ઉપરાંત જો આપણા ઘરની અંદર લક્ષ્મી આવતી હોય અને વહી જતી હોય, મીન્સ આપણે એમ કહીએ કે જેટલા પૈસા આવે છે એટલા બધા ખર્ચ થઈ જતા હોય અથવા વેડફાતા હોય, તો એ લક્ષ્મીને આપણે કન્ટિન્યુ સ્થિર રાખવા માટે આપણે એક વિધિ બતાવશું। તો હું તમને અમુક વસ્તુઓ બતાવીશ કે જેનાથી આપણે લક્ષ્મી વિધિ કરી દઈશું। તો હું એમ કહું કે માણસ પંચધાતુનો બનેલો છે, તો જ્યારે પંચધાતુનો બનેલો હોય ત્યારે એમાં 5 વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે: સોનું, ચાંદી, કોપર, લોખંડ અને સ્ટીલ। આવી 5 વસ્તુઓ જો ભેગી થાય અને 5 વસ્તુઓને ભેગી કરી અને એના ઉપર જો વિધિ વિધાન કરવામાં આવે તો લક્ષ્મી જેટલી આવે છે એટલી સ્થિર થશે। તો આપણે જોઈએ કે આ એક બીજી બી પ્રકાર છે, ત્રીજો પ્રકાર છે। તો હું તમને અમુક વસ્તુઓ બતાવીશ કે જેને કારણથી તમે આ વસ્તુ મૂકી અને પણ લક્ષ્મી વિધિ કરી શકો છો। આ છે, હું તમને બતાવું કે એક આ મંગળના ગણપતિ છે। તમે જોશો કે મંગળના ગણપતિ રિયલ જે મંગળનો સ્ટોન હોય છે, કે જે રિયલ મંગળ હોય છે, એ મંગળમાંથી કોતરેલા હોય છે। આ છે મંગળના ગણપતિ। એની સાથે આપણે 5 વસ્તુ મૂકશું અને લક્ષ્મી વિધિ કરશું। તો વીણાબેનનો જે પ્રશ્ન છે એ એવું નથી કે ખાલી વીણાબેન માટે તે, પણ MATVના દરેક દર્શકો માટે આ વસ્તુ છે। તો એક છે મંગળના ગણપતિ, એની સાથે બતાવીશ એક ચંદ્રના ગણપતિ છે। આ 2 ગણપતિ છે। 2 ગણપતિ તમે જોશો કે મંગળના અને ચંદ્રના। એની સાથે આપણે દેખાડીએ કે સ્ફટિકના ગણપતિ। 3 વસ્તુ, તો સ્ફટિકના ગણપતિ, એની સાથે તમે ચાંદીના ગણપતિ, 4 વસ્તુ મૂકશો અને એક સોપારી મૂકશો। જ્યારે આ 4 વસ્તુ ભેગી કરવામાં આવે છે, સ્ફટિકના, મંગળના, ચંદ્રના,
ચાંદીના અને સોપારી. જ્યારે આ 4 વસ્તુ ભેગી કરી અને એની સાથે સોપારી મૂકી અને જો લક્ષ્મી વિધિ કરવામાં આવે તો એનું ફળ ખૂબ જ સારું અને ઉત્તમ મળે છે. આપણે જોઈએ કે વીણાબેને કીધું છે કે આની એક વિધિ કરવા માટે 15 થી 20 મિનિટ જોવે છે અને એ વિધિ કરો તો તમારી પાસે લક્ષ્મી સતત આવતી રહે છે. તો આજે આપણે જોઈએ કે જન્માષ્ટમી જેવા તહેવારો છે, આ દિવસે પણ આપણે આ વિધિ કરી શકીએ છીએ. ધનતેરસને દિવસે, નવરાત્રિમાં કરી શકીએ છીએ. આવો કોઈ સારો પ્રસંગ હોય તો આપણા ઘરની અંદર લક્ષ્મી વિધિ અને રુદ્રી પણ કરાવી શકીએ છીએ. તો વીણાબેન, તમને મેં કહી દીધું કે લક્ષ્મી વિધિ ઘણા બધા પ્રકારની હોય છે. આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ કે શ્રીયંત્ર ઉપર કરી શકો છો. શ્રીયંત્ર ઉપર પણ આપણે લક્ષ્મી વિધિ કરવાથી આપણને ફાયદો રહે છે. એના મંત્રો ઉચ્ચાર કરીને એને દૂધ, પાણી, ગંગાજળથી પવિત્ર કરી અને એની ધૂપ દીપ દઈને પણ આ વિધિ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર આપણને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો વીણાબેનનો માન્ચેસ્ટરથી. તો આપણે એમના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો. આજના આપણા કાર્યક્રમમાં હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિમાં એમણે હજી આપણને 2-4 આપણને એક હસ્તાક્ષર આવ્યા છે, તો એ હસ્તાક્ષર આપણે જોઈએ. તો વલસાડથી આપણને પૂછ્યું છે રાઘવભાઈએ કે મારે ઘણા વર્ષથી બાળક નથી, જેના કારણે કોઈ મને ઉપાય બતાવો. તો રાઘવભાઈ, હું તમને એમ કહું કે પહેલા તો તમે થોડીક ડૉક્ટરની સલાહ લઈ લો, કેમ કે ઘણા વર્ષથી તમારે બાળક નથી. તો એ જે ઉપાય બતાવે એ પ્રમાણે કરો, એ વધારે સારું રહેશે. છતાં જો તમને એવું લાગે તો તમે મને તમારા અને તમારા મિસિસના બંનેના મને હસ્તાક્ષરો મોકલ્યા છે, તો હું એનું મારી તરફથી કંઈક નિવારણ જો થતું હશે તો હું ચોક્કસ કરીશ. પણ હું તમને એનો ઉપાય બતાવીશ કે જેનાથી તમારા જીવનની અંદર ઘણો જ ફાયદો થઈ શકે છે. તો હું તમને બતાવી દઉં દરેક દર્શક મિત્રોને કે જે રાઘવભાઈએ મને આજે 2 હસ્તાક્ષર મોકલ્યા છે, એમાં આપણે જોવામાં આવે કે આ હસ્તાક્ષરોની અંદર 2 પ્રકારના હસ્તાક્ષર છે, હસબન્ડ અને વાઈફના. તો રાઘવભાઈ, હું તમને એમ કહું કે તમે જે મને હસ્તાક્ષરો મોકલ્યા છે એમાં જો આપણે જોઈએ તો મને 1, 2 અને 3 મોકલ્યા છે. 3 હસ્તાક્ષરમાં 2 તમારા છે અને 1 તમારા મિસિસના છે. જો આ હસ્તાક્ષરને હું નિરખીને જોઉં અને જો એમાંથી તમને કોઈ ઉપાય બતાવું તો હું તો એમ કહીશ કે તમારા ભાગ્યની અંદર બાળકનું સુખ છે. તો પહેલાં તો તમે ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન કરો તો વધારે સારું રહેશે. બીજું, જો તમને છતાં મનને એમ થાય કે ના મારે કરવું જ છે કંઈક, તો હું તમને બતાવું કે આ જો હસ્તાક્ષર હોય તો હું એમ કહીશ કે 3 હસ્તાક્ષરની જગ્યાએ તમારે ફક્ત 1 જ વાપરવાના હોય છે. એ હું તમને જણાવી દઈશ. જ્યારે તમે મને કોઈ પણ પ્રશ્ન કરો ત્યારે મારા મેલ આઈડી ઉપર અથવા તો ફોન નંબર ઉપર કોલ કરીને પણ તમે મને પૂછી શકો છો. તો હજી હું ઉપાય બતાવું પહેલા દરેક દર્શક મિત્રોને કહી દઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર આજે આપણે જે હસ્તાક્ષર બતાવ્યા છે એ હસ્તાક્ષર 1 મોટા છે, 1 નાના છે અને એકદમ 1 સ્મોલ છે. તો હું તમને કહી દઉં કે જ્યારે આ વસ્તુ તમને તકલીફ રહે તો હું તમને એમ કહું કે 1 11 મુખી રુદ્રાક્ષ આવે છે. 11 મુખીની સાથે 1 પંચમુખી અને 1 રુદ્રાક્ષ 2 મુખી. આ 3 રુદ્રાક્ષને ભેગા કરી અને જો એની ઉપર રુદ્રી કરવામાં આવે અથવા તો ચંડી પાઠ કરવામાં આવે તો તમારે બાળક થવાની શક્યતા રહી છે. અને એની સાથે પણ હું એમ કહું કે આ રુદ્રી કરવાથી તમારા મનને શાંતિ મળશે અને એની માટેના ઉપાયો આપણને સરળતાથી મળી જશે. આ ઉપરાંત જોઈએ કે આ કાર્યક્રમની અંદર મને એક બેને પૂછ્યું છે કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિનું એક પુસ્તક આપણે લખ્યું છે, એ મને બતાવો. તો હું દરેક દર્શક મિત્રોને એમએટીવીના કહું કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ અત્યાર સુધીમાં હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ અને હસ્તાક્ષરોનું મૂલ્યાંકન આપણી પાસે ગુજરાતીમાં હતું. હવે આ જ વસ્તુ તમને ઇંગ્લિશમાં પણ મળશે. તો આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિનું પુસ્તક હવે તમને ઇંગ્લિશ એડિશનમાં મળી રહેશે. અને દરેક દર્શક મિત્રોને જે લોકોને ગુજરાતી નથી આવડતું અથવા હિન્દી નથી આવડતું એ લોકો માટે આ ઇંગ્લિશમાં છે. તો હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ હવે આપણે જોઈશું કે અંગ્રેજીમાં પણ છે અને તમે એને વાંચી અને એનું નિવારણ તમે જાતે કરી શકો છો. આપણે આગળ વધીએ કે આજે મને એક બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા છે. તો આપણે આજે જોઈએ કે આમણે મને લખ્યું છે, અચ્છા એમને ગુજરાતી નથી આવડતું. अच्छा तो दुबई से एक मुझे मेल आया है, उसने मुझे कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछा. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
का नाम मेक है। मेक ने मुझे दुबई से लिखा है, मेरी शादी हुए बहुत साल हो गए, मगर हम मेरी और मेरी पत्नी के बीच हरदम झगड़ा रहता है और कुछ न कुछ उपाय बता दो। अच्छा, तो मैक, आपने बताया है कि आप हस्बैंड और वाइफ में हरदम झगड़ा रहता है, तो उनके बारे में भी कुछ बता दो। आपने मुझे सिग्नेचर भेजे हैं, सिग्नेचर के साथ आपने अपनी हॉरोस्कोप भी भेजी है, तो मैंने सारी चीजें देखी और उनके बाद में बता दूं कि आपके जो सिग्नेचर है, जो उनमें से आपको एक ही सिग्नेचर करना है। पहले तो एक सिग्नेचर करना है। अगर आप दोनों में झगड़ा होता है तो मैं आपको कुछ दिखा दी हूं। एक आता है टर्टल, तो ये जो टर्टल है ये आपको छोटी सी एक कटोरी में रखना है। ये जो टर्टल है ये छोटी सी कटोरी में रखना है और टर्टल को पूरा कटोरी में पानी भर देना है। पानी भर के कटोरी में रख के अपने बेडरूम में बेड के पास आप रख सकते हैं। ये अगर एक छोटी सी आप चीज करेंगी तो आप दोनों में जो बीच में झगड़ा हो रहा है वो धीरे 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 ये झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा और आप दोनों में बहुत प्रेम बढ़ेगा। हस्ताक्षर की अनुभूति कार्यक्रम में आज हम और भी बहुत सारे कॉल्स है और मेल भी है, तो ये कार्यक्रम अभी कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। MATV, your channel of choice. और हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में हम फिर से एक बार ब्रेक के बाद आ गए और हर एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारी फोन लाइन MATV की स्टार्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई तकलीफ हो, तो आप अपने प्रश्नों का फोन करके हमसे निवारण ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ईमेल पड़े हैं, बहुत सारे कॉल है, तो हम आज पहले तो ईमेल का जवाब देंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास मेल है उनका आंसर ये लोग चाहते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हमने बताया कि दुबई से मैक का जो प्रश्न था उनका सॉल्यूशन हमने कर दिया। आगे बढ़ेंगे कि एक या दो लोगों ने पूछा है कि आप एस्ट्रोलॉजी सिखा रही है, तो उनके बारे में कुछ बता दिए। तो हमने पिछले प्रोग्राम में पिछले साल भी बताया था और इस साल भी बता रहे कि हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में और इनके सीधा हमारी एक इंस्टीट्यूट है जिनमें हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं गुजरात भावनगर में। तो इनके बारे में हम आगे बताएं, इससे पहले एक कॉल ले ले। हेलो 2 weeks ago. हेलो हेलो Hello. हाँ Yes, I'd like to know that the program you're doing. What kind of program is this? Is it like you say horoscope, like anything I like to know, like you say? अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मुमताज। अच्छा, आप हिंदी या गुजराती में बात करें, जो भी आपको अच्छा लगे। हिंदी। हाँ बोलिए। मेरा नाम मुमताज है। हाँ? मैं कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मेरा मेरा कुंडली के बारे में। आपकी कुंडली के बारे में? तो आपको मुझे हमारे MATV का जो ईमेल आईडी है हमारा, तो ईमेल आईडी पर अपनी कुंडली आप मुझे मेल कर सकती है। तो अगर आप मेल करेंगी तो आप कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो हम आपकी कुंडली देख के भी बता सकते हैं। अच्छा, ठीक तो है? अभी आप क्या ऐसे मैं आपको क्या सवाल कर सकती हूँ? आप क्या अभी तो आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछ रही है, तो जब आप मुझे मेल करेंगी कुंडली से तभी तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी ना। जैसे कि आपको कोई तकलीफ हो तो वो भी क्वेश्चन आप ईमेल में डाल दो, चलेगा। ठीक है? जैसे मैं अभी जैसे मेरा शादी हुआ था। हाँ। तो मेरा 2 बच्चे हैं। ठीक है। लेकिन मेरा हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स हो गई है। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ मैं फिर से शादी होगी या नहीं किसी के साथ। अच्छा, आपकी तो एक काम करें, आप मुझे अपना जो हमारा ईमेल आईडी है ईमेल डालिए, ये प्रोग्राम में अभी दिखाया जाएगा, तो आप उसमें ईमेल से अपनी कुंडली है वो कुंडली मुझे ईमेल कर दो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी दूसरी बार शादी होगी, कब होगी और क्यों। क्योंकि एक बार आपका डिवोर्स हो गया तो उनका कोई रीजन होगा, तो वो देख कर आपको डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी, या तो ये फिर आप मुझे कॉल करेंगी तो भी मैं बताऊंगी। लेकिन आज आप नहीं बता सकते हो? नहीं, आपकी कुंडली होगी तो मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी ना। तो मैं मेरा नाम या मेरा जन्म का तारीख
ऐसे मेरा जन्म कब हुआ था, मैं ऐसा कुछ दे सकती हूँ आपको? नहीं नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बार ब्रेक हो चुका है फर्स्ट। दूसरी बात की आपने दो बच्चे हैं, मीन्स के लॉन्ग टाइम हो गया शादी ब्रेक होने के बाद। तो कोई उसमें जैसे कि मेजर प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई ग्रहों की है या नक्षत्र की है, तो उनके लिए आपको मुझे वो भेजना पड़ेगा। और जन्म पत्रिका उनके साथ आपके सिग्नेचर की कॉपी भी मुझे ईमेल कर, तो मैं आपको बताऊंगी। और हमारा MATV का जो हमारा हस्ताक्षर की अनुभूति कार्यक्रम का जो ईमेल है वो HNA, आप हर एक दर्शक मित्र ये जो ईमेल आईडी है वो लिख ले, HNA.MATV@gmail.com। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका या सिग्नेचर अगर भेजना चाहे हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में, तो आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो अभी जो प्रश्न था वो उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर जन्म पत्रिका देखने के बाद ही अगर हम क्लियर आंसर देंगे, क्योंकि अगर आपने पूछा तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो उनके लिए कोई सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर ये ढूंढना है और उनका कुछ परमानेंट करना है तो उनके लिए हमें जन्म पत्रिका चाहिए। तो હજી એક કોલ આવ્યો છે, તો હું હજી એક કોલનો જવાબ આપી દઉં। આજના આપણા કાર્યક્રમની અંદર ઘણા બધા કોલ આવી રહ્યા છે। हेलो हेलो हाँ जी, मेरा नाम जमील अख्तर है। हाँ बोलिए जीनित अख्तर, जी आपका क्वेश्चन क्या है? जी हाँ मेरा क्वेश्चन क्या है? हाँ मैं अपने मतलब के पूछना चाहता हूँ जरा। हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, मेरी लाइफ का मतलब जरा बताएं आप जरा। अच्छा आपकी लाइफ के बारे में क्या, कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। अगर पूरी लाइफ के बारे में जानना है तो फिर मुझे नहीं, मेल नहीं, करना पड़ेगा। मेरी एक ही क्वेश्चन का जवाब दे दें। एक ही? एक क्वेश्चन का जवाब दे दें आप। हाँ बोलिए चलो। मैं अपनी लाइफ का मतलब जरा पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम जो है, मीन्स आपकी कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, जैसे कि जॉब है, शादी है, स्टडी है, क्या है? घर में प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा आपकी खुद की या आपकी पूरी फैमिली की? जी पूरी फैमिली की। अच्छा मीन्स कैसे, कोई बीमार रहते हैं सारे लोग या सबके पास नहीं कोई पैसा बीमार नहीं है? रहते, बस हाँ, या अंदर अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई है। मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है क्या? मीन्स आप क्लियर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्लियर आंसर दे पाऊंगी। हाँ, तो मैं मेरी वाइफ के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। अच्छा आपकी वाइफ के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आपकी बर्थ डेट बताइए। 2443। 43। अच्छा ठीक है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक बार नहीं, पहले भी एक दो बार हो गई है ना? जी हो गई है, मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है आपके साथ? जी जी ठीक है। अभी ये जो कार्यक्रम में मैंने टर्टल दिखाया था, एक पता है आपको, कछुआ? नहीं मैंने अभी देखा है। देखा है ना? अभी मैंने देखा अच्छा है। प्रोग्राम आपने अभी देखा। तो फिर से बता दूं, ये आप बार बार ये? रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, ठीक है, हर एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनका सॉल्यूशन ऐसा ही टीवी पर दिखा रही हूँ। एक मैं फिर से दिखा रही हूँ, एक मंगलकर गणपति आते हैं और एक टर्टल आता है। मैं दो चीजें बताती हूँ। एक आता है कछुआ, ठीक, ये, और ये मेटल का आता है, नो के क्रिस्टल का या कांच का या प्लास्टिक का नहीं लेना, ये ऐसे मेटल का आता है कछुआ। ये जो एक, और इनके साथ दिखा रही हूँ मंगल के गणपति, दो चीजें। ये मंगल के गणपति है। ये गणपति आपको विधि करके मंदिर में रखना है, पहली चीज। दूसरी, एक कटोरी में पानी भरना है और वो पानी के अंदर ये पूरा कछुआ, ये कछुआ इस कटोरी में डाल देना है और इसे बेडरूम में रख देना है, आपके सिर के पास नीचे, ठीक। ये दो चीजें अगर आप करेंगे तो जो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उनका सॉल्यूशन आपको परमानेंट मिलेगा। प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मैं मुस्लिम हूँ।
तो इसमें कोई बात नहीं। देखो, ये ना इसमें हिंदू आता है ना मुस्लिम आता है, ये हर एक लोगों को, ये हर एक लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, हर एक इंसान के लिए है ये, ठीक है। अगर और भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल करेंगे, और फिर बाद में मुझे क्वेश्चन करेंगे तो भी उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगी। अगर ये करने के बाद अगर आपको कोई फर्क ना लगे, ये कोई डिफरेंट ना लगे, तो आप मुझे कॉल करके फिर से एक बार पूछ के इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। हम देखेंगे ये प्रोग्राम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स है लोगों की। ये जो हमारा कार्यक्रम है हस्ताक्षरों की अनुभूति, सिर्फ आपको एक छोटे से सिग्नेचर करनी है और इनमें से पूरी लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें सिग्नेचर भेजा है और पिछले कितने सालों से ये सिग्नेचर में से ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं हम, और हम इनमें से खुद ही सॉल्यूशन करके, और बहुत सारे लोग ये किताब पढ़ के भी अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो और आगे बताए, और इनके 2 क्वेश्चन हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर दे। इनसे पहले एक हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। पहले आपका नाम बताइए हमें। मेरा नाम बी से है। अच्छा, डी से है। अच्छा, चलो। नहीं, बी से है, बी से। ओके, आपको क्वेश्चन क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ हाँ? कि जैसे अभी पूछ रहे थे कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हाँ? इकट्ठे नहीं रह पाते। अच्छा, 1 मंथ 2 ओके, मंथ प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, पर हर महीने झगड़ा होता है? सेपरेशन है, काफी हो जाती है, पर रहना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, पर फिर ऐसे ही कुछ हो जाता है कि सेपरेशन हो जाती है। अच्छा, शादी हुए कितने साल हो गए आपको? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 14 साल से लड़ी रहे हैं आप? हाँ, 3 बच्चे भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो लड़ रहे हैं और 3 बच्चे भी है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन बताएंगे? आपकी अपनी बर्थ डेट भी बताइए, और बर्थ डेट, पूरी बर्थ डेट बोलो। 16/4/76। 76। अच्छा, अभी तो छोटी उम्र है, बहुत बड़ी नहीं है, और शादी बहुत लंबी खींचनी है आपको। इसलिए अच्छा, आपके बारे में हम बता देंगे। और दूसरी बात, अब जब सिग्नेचर एक से ज्यादा यूज करती है ना? मतलब नहीं, एक ही यूज करती है। एक यूज करती है। स्मॉल बिग क्या यूज करती है? स्मॉल बी, बिग बी से शुरू करती हूँ। बिग बी से स्टार्ट करती है। और हाँ, एक और यूज 3 करती है या 2 यूज करती है? मुझे फिर से क्लियर कर दो। मतलब कि जो मेरे पुराने पासपोर्ट पे है, शायद ड्राइविंग लाइसेंस जो 10 साल हाँ, हाँ, पहले हाँ, था, उस पे हाँ। थोड़ा लॉन्ग साइन है मेरा, और अब पर शॉर्ट है? अब मैंने शॉर्ट कर दिया है। हाँ। अच्छा, और दोनों लाइफ में थोड़ा 50% डिफरेंट है? हाँ, दोनों लाइफ में डिफरेंट है? लाइफ मतलब मीन्स पहले कुछ था, अभी कुछ है? नहीं, पहले लॉन्ग था, हम्म। अभी थोड़ा छोटा हो गया है। अच्छा, दो आप कंटिन्यू अपने पिछले बहुत सालों से एक सिग्नेचर कर रहे थे, अभी भी दूसरा करिए। मीन्स 2 सिग्नेचर यूज किए आपकी लाइफ ने आप में, और इनमें नीचे अंडरलाइन है या नहीं है? अंडरलाइन है, दोनों में है। दोनों में अंडरलाइन है। और लास्ट में जो फॉन्ट है वो बिग है या स्मॉल है? वो कुछ ऐसा है कि जैसे इंग्लिश में है ना, हाँ। घूम घूम के बस कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे यूज्ड टू हो गई। अच्छा, चलो, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन, ये बार बार जो झगड़ा हो रहा है ये ग्रहों के हिसाब से है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपको रियल रूबी पहनना है। रूबी कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का या ब्राउन कलर का होता है, रेड में भी आता है, ठीक है। आपको, हाँ हाँ, आपको रूबी पहनना है। रूबी पहनने से आपकी लाइफ में थोड़ा डिफरेंट आएगा। फर्स्ट, रूबी कौन से हाथ में और कितने वेट का? देखो, ये राइट हैंड में पहनना है और 3 कैरेट में पहनना है, ये उंगली में पहनना है आपको, ठीक है। एक राइट हैंड में। हाँ, राइट हैंड में ये उंगली में पहनना है। अगर आपको ज्यादा याद ना रहे या पता ना रहे तो आप गले में भी रूबी पहन सकते हैं। और ये 3 कैरेट में। हाँ। गोल्ड में पहनना है? क्या? गोल्ड की अंगूठी में पहनना? गोल्ड में पहनो या सिल्वर में पहनो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर ये गले में पहनना होता है।
और एक चीज बता दूं कि अगर ये बार बार झगड़ा हो रहा है तो एक वास्तु यंत्र आता है, मैं दिखा देती हूँ। एक ये वास्तु यंत्र आता है, अगर इसे हम विधि करके अपने घर में रखेंगे तो जो भी नेगेटिव चीज हो रही है वो बंद हो जाएंगी। आपने जो अपनी बर्थ डेट और सिग्नेचर दिखाई है उनमें से अगर हम देखेंगे तो ये जो रूबी है वो रूबी पहने और ये जो वास्तु यंत्र है वो अपने घर में रखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई इसको हाँ हाँ जी, इसका नाम वास्तु यंत्र है। क्या है? वास्तु यंत्र है। हाँ, ये वास्तु यंत्र है। आप देखेंगे कि ये वास्तु यंत्र ऐसा है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि वास्तु यंत्र बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के आते हैं। ये 24 कैरेट गोल्ड में आता है और ये वास्तु यंत्र घर में रखने से सारी नेगेटिव चीजें दूर होती है। और अगर आप के बार बार झगड़ा होता है या इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां भी आप जाते हैं ये आपके साथ आपका सूर्य डाउन है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। आप अगर मेरा ये सूर्य करेंगे, डाउन है। हाँ आपका जो सूर्य है वो डाउन है, इसलिए मैं आपको रूबी पहना रही हूँ, ठीक है? अगर इतना रूबी रेड करेंगी, कलर का आपने बोला, हाँ। वो लिटिल फिंगर्स के हाँ, बाद ठीक जो है, सेकंड हाँ। होती है, उनमें पहन ये सकते आप हैं। मुझे दोबारा करके दिखाएंगे हाँ। कौन सा आपने बताया था? ये उंगली में पहन सकते हैं आप। राइट में ना? हाँ, राइट में ये छोटी वाली से भी दूसरी वाली, अगर ना याद रहे तो आप गले में पहन लो तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, और एक क्वेश्चन और पूछ सकते नहीं, हैं? ये प्रोग्राम में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मेल है। अगर आपको और भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो और ये जो मेरा सिग्नेचर का है, अगर मैं पहले वाला ही सिग्नेचर शुरू नहीं, कर दूं नहीं। तो वो मुझे दोनों सिग्नेचर आप भेजो, मैं आपको बताऊंगी कौन सा सिग्नेचर आपको यूज करना है, ठीक? तो आप मुझे क्या उसका बताएंगी? वो ईमेल अच्छा, मैं आपको ईमेल बता देती हूँ और ये प्रोग्राम जब खत्म होगा तब हमारी स्क्रीन पर भी ईमेल आईडी आएगा तो आप उस पर लिख सकती है। तो मैं हर एक दर्शक मित्र को बता दूं कि हमारे एवीटीवी के हस्ताक्षरों की अनुभूति का ईमेल आईडी जो जिन्हें लिखना है वो लिख ले, hna.matv@gmail.com। ये HNA स्मॉल में है ना? हाँ, सारे फॉन्ट स्मॉल में है, hna.matv@gmail.com। ओके, ठीक थैंक है? यू। हाँ, अगर आप हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम ईमेल में भी जीमेल में भी ढूंढेंगे तो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। हम देखेंगे कि अभी बहुत सारे हमारे कॉल्स आ रहे हैं और पिछले भी हमारे पास क्वेश्चनों ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हैं तो उनके आंसर हम आज आगे दे रहे हैं। तो अभी तो समय हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर देना है, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ये हमारा हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम फिर से। तो आप कहीं नहीं जाइए, एक छोटा सा ब्रेक। आपको मालूम है कि आपके हस्ताक्षर में आपकी समस्या और उन समस्याओं का समाधान इन्हीं में छिपा हुआ है। मैं आपके हस्ताक्षरों में से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं ग्राफोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल्या देसाई आपको हमारे प्रोग्राम हस्ताक्षरों की अनुभूति ब्रेक के बाद हम फिर से हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में। आज जन्माष्टमी के दिन इतने सारे कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे ईमेल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके दिखाएंगे और उनका सॉल्यूशन आपको कर देंगे। सबसे पहले अभी आगे बढ़ने से पहले एक फिर से कॉल है तो हम उसको ले लें। हेलो। हेलो। हाँ या मैं गौरंग बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। या मेरी शादी नहीं हो रही है। कितने आपकी एज कितनी है? और मैं 37 का हूँ। 37 के हैं। अच्छा, तो आपके बर्थ डेट बताइए और आप किस तरह के सिग्नेचर करते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए। सिग्नेचर में क्या बताऊँ मैं आपको? अच्छा, सिग्नेचर में जैसे कि शॉर्ट में करते हैं, लॉन्ग में करते हैं या ब्रेक में करते हैं? शॉर्ट में ही करता हूँ। एकदम शॉर्ट में? या जी पटेल। ओके, जी पटेल ओनली। सर्कल करते हैं उस पर? नहीं, Round. कुछ नहीं, ओनली जी पटेल। अच्छा, 37 कितने बताए? 37, 38? या 36, 37। 36। और बर्थ डेट?
मेरी बर्थ डेट है 76। 76। अच्छा, आपने पहले कुछ विधि विधान करवाया है या नहीं करवाया है? ये एक भी बार एंगेजमेंट हुई है? मैंने इंडिया में करवाया था, हाँ। विधि सब कुछ मैंने करवाया था। अच्छा, कुछ किसकी राहु दोष की विधि करवाई थी? क्या करवाया वो था? पता नहीं है कौन सी विधि है मुझे। अच्छा, कुछ पता नहीं कौन सी विधि है। और एक भी बार एंगेजमेंट हुई है या शादी हुई है? ये बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी 4 बार एंगेजमेंट हुई और सब फेल हो गई है। अच्छा, 4 बार होके कैंसिल हो गई शायद। अच्छा, आप मुझे एक करो। सबसे पहले अभी जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है उनमें हमारा ईमेल आईडी है, आप मुझे पहले तो आपके सिग्नेचर भेजो फर्स्ट, आपके किस तरह से आप कहते हैं मैं क्लियर कर लूं। दूसरी बात, आपको राहु दोष है तो आपको राहु दोष की विधि करवानी होगी, क्योंकि ये बार बार जो हो रहा है वो राहु दोष की वजह से है। एक दूसरी बात, आपका नक्षत्र जो है वो नक्षत्र अच्छा नहीं है, मीन्स भारी नक्षत्र है। तो जब तक आपका नक्षत्र की विधि नहीं होगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। क्योंकि जब तक बहुत सारी ऐसी चीज होती है जन्म पत्रिका में, अगर इनका सॉल्यूशन अगर ना करे तो लाइफ में कभी शादी नहीं होती है, ऐसा भी होता है। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसे है कि जैसे कि मैंने बताया कि राहु दोष, तो राहु दोष कोई भी काम आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अभी स्टार्ट किया नहीं कि स्टॉप हो गया, स्टार्ट किया नहीं कि स्टॉप हो गया। जैसे कि एंगेजमेंट हुई शादी तक पहुंचे नहीं, जैसे कि एंगेजमेंट हुई शादी तक ब्रेक भी, सारी जगह ब्रेक ही हो रहा है। तो पहले तो आप एक बार राहु की विधि करवा ले और आप पूछ लीजिए कि कौन सी विधि करनी है या किस तरह से की है। ये मुझे आप वर्णन कर देंगे तो भी मैं बता दूंगी ये किस तरह की और कौन सी विधि की है। अगर ये पता चल जाएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्योंकि राहु दोष भी कभी शादी, जिन जिन लोगों को राहु दोष होता है उनकी शादी बहुत लेट होती है और ये सब ब्रेक होता है शादी में। तो आप ये करवा लो, और अगर ज्यादा अगर जानना हो तो ये मुझे मेल कर दो ताकि मैं आपको इनको क्लियर आंसर दे सके। तो और लास्ट बार एक बार ये विधि करवा लो जो, ठीक है। और सिग्नेचर अगर डिफरेंट तरह के करते हैं तो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ, मिल जाएगा। ये एमएटीवी के कार्यक्रम में अभी लास्ट 5 मिनट में जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है तब आपको इसमें ईमेल आईडी मिलेगा, और मैं अगर जरूरत पड़ी तो बीच में भी आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। और आप कहाँ पे हो? क्या? आप कहाँ पे रहती हो? लंदन में? मैं लंदन में हूँ। आप मुझे फिर मेल करेंगे तो मैं अपना एड्रेस आपको मेल कर दूंगी, ठीक। और आपकी ट्राई करेंगे इस साल आपकी शादी डेफिनेटली करवा देंगे। कि मैं अभी स्कॉटलैंड में रहता हूँ इसीलिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे मेल से फोन से भी बात कर सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू। ओके। बहुत सारे लोग हैं आज थोड़े से शादी के ब्रेक के ऐसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बहुत सारे दर्शकों को पहले भी बता चुकी हूँ कि राहु की विधि क्या होती है, वो कैसे की जाती है, और उनका सॉल्यूशन आप कहीं भी हो, मैनचेस्टर में हो, स्कॉटलैंड में हो, यूएसए में हो, तो आप उसका सॉल्यूशन परमानेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इनसे बहुत ही फायदा होगा और धीरे धीरे आपका जो काम रुक रहा है उनका सॉल्यूशन होगा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इनके सिवा भी बहुत सारे लोगों को राहु दोष की प्रॉब्लम है। तो राहु दोष की जो विधि आती है वो 5 तरह के नाग इकट्ठा करके विधि करी जाती है, जैसे कि तांबे का नाग, लोहे का, कांस्य, सिल्वर और गोल्ड। ये 5 तरह के नाग होते हैं, उनको इकट्ठा करके उन पर विधि की जाती है और कम से कम इसको विधि करने में 1 या 2 घंटे लगते हैं। अगर ये विधि करके अगर पानी में बहाया जाए तो भी आपको जो भी राहु का दोष है उनका सॉल्यूशन हो सकता है, या तो फिर आप राहु का स्टोन भी पहनकर इनका निवारण कर सकते हैं। तो अभी हम इनके बारे में और भी आगे बात करें। इनसे एक कॉल ले ले। हेलो हेलो हेलो। Hello. हाँ, Yeah, hi, Dr. Kushalya. This is Summer from Netherlands. हाँ बोलिए। मेरा actually questions इस time आप you can just answer one question at the moment. हाँ, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और इतने सारे कॉल आ रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर ज्यादा पूछना है तो आप मुझे मेल करो, फोन करो,
तो भी आपको आ जाए, उनका आंसर सारा मिलेगा। એટલે एक ही क्वेश्चन पूछने अलाउड है। ओके, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? नहीं, क्वेश्चन बोलिए। ओके, क्वेश्चन इज इट्स मेरे को यहाँ हॉलैंड में आए हुए 2008 में आया था। मैं सेटल कब होऊंगा यहाँ पे? अच्छा, क्या करना है आपको? I just want to get settled over here. अच्छा, अभी सेटल होना है क्योंकि आपको। मेरी वाइफ यहाँ पे रहती है। हाँ, ठीक है। या अच्छा, तो आप मुझे ये अच्छा, सेटल होने के लिए आपको दो चीजें मुझे भेजनी पड़ेगी। फर्स्ट, आपकी और आपकी वाइफ की सिग्नेचर दोनों, और जब आप यहाँ आए हैं उस दिन की डेट मुझे भेजनी है। या वो भी मेरे को पता है। ठीक है, तो वो मुझे सारी चीजें भेज दो ताकि मैं क्लियर आंसर कर दूं कि आप यहाँ सेटल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इससे है पता जी। चल जाएगा फिर आपको। मैं आपको ईमेल करता हूँ अपना नाम, वाइफ का नाम, दोनों की डेट ऑफ हाँ, बर्थ, सारी चीजें मुझे भेज दो। और जिस डेट को मैं यहाँ पे आया था। हाँ, वो दोनों, आप दोनों जब आए थे वो दोनों डेट मुझे चाहिए। ओके, ठीक है जी, क्योंकि वो तो पहले से यहाँ पे सेटल्ड हैं और अच्छा, मैं लेट आया था। अच्छा, तो आपकी सिर्फ मुझे भेज दो, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। हाँ, ठीक, थैंक यू ओके, डॉक्टर हाँ। साय। હા, બાય। અચ્છા, अब आगे बढ़े અને આજે આપણા ઘણા બધા આવા પ્રશ્નો છે એની ઉપર આપણે આગળ વધીએ। અને એમણે જેમ કીધું કે એમને સેટલ થવું છે, તો ઘણા બધા એવા કારણ હોય છે કે ઘણા લોકો અહીં સેટલ નથી થઈ શકતા, એટલે ના એ લોકો ઇન્ડિયામાં સેટલ થઈ જાય કે બીજી કન્ટ્રીમાં, કે નથી અહીં સેટલ થઈ શકતા। તો આવા ઘણા બધા દર્શક મિત્રોનો છે, તો આપણે એની ઉપરથી પણ કહી શકીએ કે આપણો જે જન્મ છે, જન્મ થયો છે, એ જન્મના ગ્રહોની અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે જો કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરો તો એમાં તમે સ્થિર થઈ શકો છો, અને સ્થિરતાની સાથે તમારું નામ, પૈસા આપણે કમાઈ અને એક બહુ સારું જીવન આપણે જીવી શકીએ છીએ। ઘણા લોકો દુવિધામાં હોય છે, અમુક વર્ષો અહીંયા રહે છે, અમુક વર્ષો અહીંયા રહે છે, એને કારણે લાઈફ જે આખી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે કે સેટલ કરતા કરતા માણસને 5-10 વર્ષ લાગી જાય છે। તો આપણે એ જ પ્રમાણે હું તમને કહું કે એમ ધીમે 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 દરેક લોકોને ખાલી તમારા હસ્તાક્ષરમાંથી આપણે આના પ્રશ્નોનું નિવારણ પણ આપી શકીએ છીએ। તો હજી એક આજના દિવસમાં કોલ છે, તો હજી એક કોલ લઈ લઈએ। હેલો, हेलो, सत हाँ। श्री अकाल जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बेंजल से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बेंजल। तो मेरे को काम नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम खराब, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या काम मिल जाएगा जहाँ कहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी लेना जो बन जाएगी, इसीलिए मैं बात किया है। अच्छा, आपका नाम पहले फिर से एक बार बताते। पी है। पी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके सिग्नेचर स्टार्टिंग में बिग है? हाँ जी, हाँ, पी है, बिग है। बिग बिग है ना, और फिर सारे सिग्नेचर हाँ। एक साथ जुड़े हुए हैं, अक्षर जो फॉन्ट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, उसके जो पिछले से एक अक्षर है ना, वो उसके सब थोड़ी सी डैश है। अच्छा, मीन्स फर्स्ट जो सिग्नेचर फर्स्ट फॉन्ट है वो बिग है, फिर थोड़ी स्पेस है, हाँ फिर जी। सिग्नेचर है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, हाँ। अगर ये जो सिग्नेचर है तो आपको इनको हिसाब से सिग्नेचर में थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो आप अपने हाँ, सिग्नेचर हाँ मुझे जी। मेल करें, ये सिग्नेचर में थोड़ा सा चेंज करूंगी तो उनके हिसाब से आपको आपका जी। काम मिल जाएगा। अच्छा जी। और इस काम को फिर जब मैं सिग्नेचर चेंज करूंगी, वो सिग्नेचर आपको जी। जहां भी आप काम के लिए अप्लाई करेंगे वहां आपको करनी है। फर्स्ट, दूसरी बात, ठीक ये है। सिग्नेचर के अलावा आपको ये काम परमानेंट मिले, उनके हाँ, लिए मैं एक चीज बता दूं, रियल पोखराज आता है, गुरु। ठीक है, हाँ जी। मैं आपको वो दिखाती हूँ, रियल पोखराज, वो आपको परमानेंट पहनना है। और एक बात, अच्छा। बिजनेस नहीं करना है आपको, जॉब करनी है। जी। ठीक है, देखिए ये मैं दिखा दूं कि ये येलो कलर का पोखराज आता है, जी हाँ। ये रियल पोखराज है। जी हाँ जी। ठीक है, ये जो रियल पोखराज है तो मैंने तो ये हाँ जी, आपको मैंने तो हाँ पहनना है। अब आप बोलिए। जी, मैंने नीलम नाग डाला हुआ है। कौन सा वाला? नीलम। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको नीली में डाला है तो वो आपको पहन के रखना है। ये आपको काम के लिए येलो पोखराज पहनना है। ठीक है, ये कंटिन्यू आपके लाइफ में काम रहे, आप कभी फ्री ना रहे और आपको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, इनके लिए ये आपको पहनना है। ठीक, इसे आप गोल्ड में बनवा के फर्स्ट उंगली में पहन सकते हैं
और इन पर जो मंत्र आते हैं वो मंत्र भी आपको 21,000 मंत्र करवाने हैं। अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद मंत्र करिए 21,000 तो बेटर रहेगा। तो उनसे आपकी लाइफ में ये पोखराज का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा और आपका स्पीड में काम होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आप आपके ऑफिस से भेज सकते हैं या किसी और बाहर से खरीद लें? आप कहीं से भी खरीद सकते हैं मगर रियल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास तो पुखराज है ना, वो मेरे को किसी ने बोला तो मैंने उसको निकाल दिया। हाँ। वो मैंने सिल्वर के नहीं, आप में अभी चलेगा सिल्वर में आप पहले से पहले, मगर उसे प्रॉपर विधि करवा के पहनना है, ऐसे ही नहीं पहनना है। अच्छा जी, ठीक, अच्छा जी। ओके चलो। तो प्रॉपर्टी का कोई बन जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, प्रॉपर्टी है आपकी लाइफ में मगर थोड़ी लेट है, मिलेगी मगर जरूर मिलेगी। ओके, આજનો આપણા કાર્યક્રમ છે, હજી ઘણા બધા કોલ્સ આવી રહ્યા છે પણ સમય આપણો આ કાર્યક્રમનો હસ્તાક્ષરની અનુભૂતિ પૂરો થવા આવી રહ્યો છે। તો આ પ્રોગ્રામને આપણે કન્ટિન્યુ રાખશું દર બુધવારે 8:30 થી 9:30 અને દર સોમવારે 9 થી 9:15 થી 10:15। તો આપણે આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ રાખશું સોમવારે અને હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમ MATV માટે દરેક દર્શક મિત્રોને આ મારા ડોક્ટર જ્યોતિષી કૌશલ્યા દેસાઈના પ્રણામ। आपकी समस्या और उन समस्याओं का समाधान इन्हीं में छिपा हुआ है। मैं आपके हस्ताक्षरों में से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं ग्राफोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल्या देसाई आपको हमारे प्रोग्राम हस्ताक्षरों की अनुभूति में मिलेंगे। You're watching MATV, your channel of choice. नमस्कार, MATV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कामाक्षी राठौर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। उत्तरी भारत में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए भक्तों की भीड़ एकत्रित हुई। मुंबई निवासियों ने गोकुल अष्टमी का त्योहार अन्ना हजारे को समर्पित किया। अनशन के 7वें दिन पर भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दबाव डालने के लिए कदम बढ़ाए। विरोधी आंदोलनों के कारण पश्चिम भारत में गांधी टोपियों की अच्छी बढ़त दिखाई दी। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की परमाणु उपलब्धियों की काफी तारीफ करी। अन्ना हजारे के अनशन ने भारतीयों में एक गजब का जुनून पैदा कर दिया है। भ्रष्टाचार जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट।